Good morning students. As you can see on the board, today we are going to study chapter 4 cubes and cube roots, okay, of standard 8. So student, in this chapter we shall study about the cubes and cube roots, okay, how to calculate the cube roots, how to find the cubes of any number. Before that we do have few introduction related to this chapter, okay. So let us see on the board. The first point we have cube and perfect cube of number. How we can define cube? Cube is the product obtained on multiplying a number 3 times is called the cube of that number. जिस नंबर का हमें क्यूब चाहिए बच्चों, उसको 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर्टिकुलर नंबर का हमें क्यूब मिल जाएगा. हाउ वी कैन से इन अनदर फॉर्म, thus the cube of a number is that natural number, it is that natural number raised to power 3. Let us see few examples, then you will understand, okay. See, I have told you if we require the cube of 1, then what we will do, okay, we will just going to be multiply, okay, we will going to be multiply this number 3 times, understood. If we require the cube of 1, then we will multiply 1 3 times, or we can write down it like that, it should be raised to the power 3. इसको पावर 3 के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ओके. सो द क्यूब ऑफ 1 is 1. Few examples of 2 you can say, okay. If we need the cube of 2, then how we can just get 2 into 2 into 2, or we can write down 2 to the power 3. What will be the answer? The answer will be 8. On the same way, you can just going to be find out the different cube of different natural number. Whatever the number you need, you just multiply it either 3 times or you can just raise it power 3. Understood? Let us see next topic. How we can define a perfect cube. सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा perfect cube होता क्या है, ठीक है. A natural number is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number. एक नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब तभी हो सकता है, एक परफेक्ट क्यूब कोई नेचुरल नंबर तभी हो सकता है जब वो नंबर किसी का क्यूब हो, जब वो नेचुरल नंबर किसी का क्यूब हो. Thus we can say a natural number n is a perfect cube. हम लोग बोल सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर n परफेक्ट क्यूब तभी होगा जब वो किसी का क्यूब होगा. क्यूब मीन्स व्हाट? दैट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स, जैसे m यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, या फिर टू द पावर 3, ओके, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, और ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ओके. नेक्स्ट यू कैन सी फ्यू एग्जाम्पल्स. 8 परफेक्ट क्यूब तभी होगा जब वो किसी नेचुरल नंबर का मल्टीपल्स होगा 3 टाइम्स, या फिर उसका पावर 3 टाइम्स रेज्ड हो जाएगा. ऑन द सेम वे 512 इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब if it is the multiple of any natural number, and here that natural number is 8, that is raised to the power 3. But you must have to take care of few points, students, okay, that I have given here as a notes. That cube of 0 is always 0, and the cube of positive integer is always a positive integer. Positive integer means कोई भी नंबर जो 1 के बाद हो, 1 और 1 के बाद हो, वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है, ठीक है, प्लस साइन के साइड में. तो अगर उसका क्यूब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा. आप यहाँ देख लो 8 या फिर 2 का क्यूब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ये भी आपका पॉजिटिव था, ये भी आपका पॉजिटिव है. 0 का तो क्यूब हमेशा 0 ही होता है. नेक्स्ट, क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव. यू कैन टेक फ्यू एग्जाम्पल्स, लाइक सपोज इफ वी रिक्वायर द क्यूब ऑफ -2, okay, if we require the cube of -2, you see what we will get, -2 into -2 into -2. What does it means? Minus minus plus, 2 2s are 4, okay, into -2 plus minus minus, that is -8. So here we have negative integer, the cube of the negative integer is negative integer, that is -8, okay. Next point you see, cube of an even positive integer is always an even. You can see examples. देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब है ना, 2 एक इवन नंबर है, उसका जो क्यूब आया है ना, दैट परफेक्ट क्यूब, दैट इज ऑल्सो एन इवन नंबर. क्यूब ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर. अगर हम किसी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करते हैं तो उसका ऑड आएगा. लाइक यू कैन सी एग्जाम्पल, अगर 3 का क्यूब हम करें तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 3 इज 9 इंटू 3, दैट गिव्स 27. ये देखिए 3 हमारा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, 27 भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है. सो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड डाउन.
अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? हार्डी रामानुजन नंबर, ओके, ये अपने इंडियन साइंटिस्ट के नेम पे है। हम लोग ना सबसे पहले ना कुछ इनका हिस्ट्री जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है याद रखना है, जिससे आपको ये नंबर्स याद रह सकते हैं, ठीक है। और इट इज़ नॉट अ मीन्स इमेजिनरी और द गिवन स्टोरी, इट इज़ द रियल स्टोरी ऑफ रामानुजन। डू यू नो फ्रॉम वेयर दिस नंबर्स हैव केम? 1729, ओके। ही वॉज जस्ट गोइंग फ्रॉम हिज होम टू अनदर प्लेस, ओके। वंस अपॉन अ टाइम ही वॉज जस्ट गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम हिज होम। और जाते वक्त क्या हुआ, सडनली उन्होंने एक टैक्सी लिया। बहुत देर के बाद वो टैक्सी मिला था बच्चों। ही वॉज जस्ट स्ट्रगलिंग अ लॉट। उस समय अभी के जैसा रेगुलर और फ्रिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी था नहीं, ठीक है। एंड ही वॉज गोइंग फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। तो जब उन्हें वो टैक्सी मिला ना, ही वॉज जस्ट वेरी मीन्स प्रेज्ड फॉर दैट टैक्सी, ओके। और जब उन्होंने उस नंबर को देखा, टैक्सी का नंबर को, तो वो 1729 था। And from there he just started to calculate about the getting the relationship of that taxi number 1729, and he have just given a perfect number that is known as right now Hardy Ramanujan number. और उसी तरह से उन्होंने बहुत सारे नंबर्स को फाइंड किया। Let us study about it, okay? 1729, 4104, 13832, ये सारे बहुत सारे नंबर्स उन्होंने फाइंड किया। चलो अब देख लेते हैं ये हार्डी रामानुजन नंबर है क्या। About Hardy Ramanujan number, about a scientist, okay, Ramanujan, he is Indian, so we must have to proud on this, okay. See what he have just actually said about these numbers. It can be written as the sum of two cubes in two different ways. Hardy Ramanujan number है क्या बच्चों? ये ना ऑब्जेक्टिव टाइप्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चंस, फिलअप टाइप का क्वेश्चंस में ये सब आते हैं। ये एक्चुअली है क्या वो समझो। एक क्यूब को हम लोग दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ओके। दैट यू कैन सी एग्जाम्पल आई हैव टेकन 1729, इट इज़ द परफेक्ट क्यूब। फर्स्ट टाइप हाउ वी कैन जस्ट राइट इट डाउन लाइक 1728 plus 1. 1728 is the perfect cube of 12 and 1 is the perfect cube of 1. So after making its cube or making its cube, if we will add, अगर हम लोग इसे ऐड करेंगे we will get the same number 1729. ये एक मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड, हाउ यू विल जस्ट गेट द सेम क्यूब, ओके, दैट इज 1729, 1000 plus 729. 1000 is the perfect cube of 10 and 729 is the perfect cube of 9. So here you see we have get the perfect cube of 12 and 1. Here we have get the perfect cube of 10 and 9. So this is the Hardy Ramanujan number, understood? And you must have to remember 1729 is the smallest Hardy Ramanujan number. It is the smallest Hardy Ramanujan number. और largest तो भाई बहुत ज़्यादा जा सकता है because we do have infinite numbers, natural numbers. Okay, few examples you can see of the Hardy Ramanujan number is 4104, okay, 13832. You just try to calculate on the same way as I have just given you on the board as an example of 1729 in your notebook. I will just see, okay. Student, we do have some interesting pattern, okay. ये एक अजीबो मतलब तरह का एक पैटर्न बनाता है, क्योंकि ये क्यूब है ना कंसेक्यूटिव नंबर्स का पैटर्न बनाता है। यू सी ऑन बोर्ड द फर्स्ट वन वी डू हैव सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अगर हम कंसेक्यूटिव मतलब पहले समझ लो बच्चों, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, ठीक है। अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 लगातार हो गया। कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो 2 4 6 8, ओके। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो मेरे साथ बोलिए 3 5 7 9, ओके, लाइक दिस। सो हियर वी डू हैव सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर के सम को हम लोगों को लगातार ऑड नंबर के सम को ऐड करना है, ठीक है। सी number 1 1 1 is its cube is 1. Second is 3 plus 5 is equal to 8. 8 is the perfect cube of 2. 7 plus 9 plus 11 is equals to 27. 27 is the perfect cube of 3. And the same way 13 plus 15 plus 17 plus 19, that is equals to 64. It is the perfect cube of 4. अब यहाँ पे पैटर्न क्या है बच्चों समझो। अगर आप एक ऑड नंबर का क्यूब अगर करते हैं तो हमें फर्स्ट डिजिट का क्यूब मिलता है, फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्यूब मिलता है, मतलब 1 का क्यूब मिल रहा है, ठीक है। अब उसके जस्ट बाद, ठीक है, उसके जस्ट बाद के कंसेक्यूटिव नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, जैसे 1 के बाद कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या हुआ 3, तो 3 और 5 को 2 प्लेसेस को ऐड किए तो 2 का क्यूब मिला। जस्ट उसके बाद 3 प्लेसेस को ऐड किए तो 3 का क्यूब मिला।
4 प्लेसेस को ऐड कर रहे हैं तो 4 का क्यूब मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम इसके आगे बढ़े, ठीक है, और 19 के बाद हो गया 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27, ठीक है, कितने हो गए 4 और एक और 29। ओके, अगर इन्हें हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 5 का क्यूब। सम का भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि क्या होगा, डायरेक्टली 1 2 3 4 5 दैट इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 5। So next interesting pattern we have, that is the difference of cubes of two consecutive integer, that is positive integer। सबसे पहले consecutive positive integer समझो बच्चों। positive consecutive integer क्या होता है? consecutive मतलब लगातार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो लगातार 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। Let us see the pattern and try to understand, okay, what will be the next pattern after giving these examples, है ना। तो first pattern है हमारा 2 cube minus 1 cube, whatever the result will come that can be just find out through this method, okay। 1 will remain constant and 3 will be remain constant। Now at the beginning 1 plus 2 into 1, okay, what will be the result we will get? See here, 1 plus 2 3 is 6, 6 1 is 6, that is equals to 7, okay। So that can be found here also। The cube of 2 will be 8 and the minus cube of 1 will be 1, that is equals to 7। On the same way, if we require the next, okay, next pattern of it, what we will do? Cube of 5 minus cube of 4, okay। So what we will get here? See, 1 plus, okay, 1 plus 5 into, that will be 5 into, here it is 3, okay, 5 into 4 into 3, 1 and 3 will remain constant। Let us see what we will get। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 plus 1 61। यहाँ पे देखिए क्या मिलता है बच्चों हमें, 5 का क्यूब हो गया, what we will get 512, okay। And what is the cube of 4? That you can just calculate, 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64, so that will be equals to 64 and the cube of 5 will be 125। It will be not 512, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो होगा क्या हमारा क्यूब? Let us see, that will be also equal 5 minus 4 1, okay, and 12 minus 6 6, 61 61। So this can be just calculated very easily directly with this pattern, okay। It is the easiest method। It can be just found in your competitive exams or in your multiple choice questions, so you must have to take care of this type of questions, okay। Now let us try to understand exercise 4.1 और इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा खत्म हो चुका है बच्चों। और इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको टोटल 4 टाइप्स समझने होंगे। अगर इस 4 टाइप्स को आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो, है ना, तो आपको पूरे चैप्टर में, पूरे एक्सरसाइज 4.1 में किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होंगे, ओके। इफ़ यू विल गेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल जस्ट गोइंग टू हेल्प यू एवरी टाइम, ओके। बट let us go through type 1। what does it saying? problem based on identifying perfect cube numbers। मतलब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर आपको दे दिया जाता है, whether is a positive natural number, any integer, यहाँ तो परफेक्ट क्यूब नंबर बोला है ना, तो कोई भी इंटीजर अगर नेगेटिव इंटीजर हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम उसे कैलकुलेट करके फाइंड करना सीखेंगे कि क्या वो एक परफेक्ट क्यूब है, whether it is a perfect cube or not, okay। let us see। so first I have taken any positive integer, that is 8000। तो let us just calculate whether 8000 is a perfect cube or not। और इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। सी ऑन बोर्ड, ओके। सी we do have 8000, okay, so we will go for the prime factorization। the smallest prime number is 2 and it is divisible by 2, so we will divide it by 2, then again it is divisible by 2, then it will again divided by 2, okay, again same। now 2 5s are 10, again 250, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5s are 10। now it is divisible by 5 to 7 1 8, so it is not divisible by 3 also, not divisible by 2 also, then it is divisible by 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are। प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने बताया था बच्चों कि लास्ट 1 आना चाहिए, ओके। एंड हियर वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द परफेक्ट क्यूब, सो वी विल मेक अ पेयर ऑफ, नॉट अ पेयर वी कैन से, वी विल जस्ट गोइंग टू बी फाइंड आउट द क्यूब ऑफ, ओके। सो वी विल जस्ट मेक अ पेयर ऑफ 3 digits like
2 into 2 into 2, 1 2 3, again 1 2 3, that will be 2 into 2 into 2, and then 1 2 3, so it will be also 5 into 5 into 5. Just make the pair of 2 2, that is pair of 3 3, not 2 2. Okay, so 2 into 2 into 5. So what we have just got, 2 2s are 4, 4 5s are 2 2s are 4, 4 5s are 20. So it is the perfect cube because we have just got the pair. अगर बच्चों परफेक्ट क्यूब नहीं होता तो ये 3 3 के पेयर पे हमारा नंबर्स नहीं आता, ठीक है। ये 3 3 के पेयर में आ रहा है, सारे नंबर्स आ रहे हैं, यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बता सकते हो वेदर इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो यहीं से आप आंसर दे सकते थे यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। और अगर पेयर पे नहीं आता, सपोज लास्ट में एक और 5 आ जाता या एक 3 आ जाता, ठीक है, तब ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता उस केस में। क्लियर। और अगर आपसे इसी क्वेश्चन के साथ एडिशनली पूछ दिया गया कि इसका ये किसका परफेक्ट क्यूब है, हुज परफेक्ट क्यूब इज 8000, तो आपको यहाँ से, ठीक है, पेयरिंग करने से 3 डिजिट के पेयरिंग करने से आपको 20 का परफेक्ट क्यूब मिल जाता है, वो नंबर भी मिल जाता है जिसका ये परफेक्ट क्यूब है। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं और ये हमारा टाइप 2 है। टाइप 1 में जो हमने सीखा था उससे पूरी तरह से रिलेटेड है बच्चों टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग क्यूब्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जो कि मैंने टाइप 1 में भी आपको बताया था। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिए थे, ठीक है। चलो इसे शॉर्ट में देखते हैं। 3 4 3, इसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, है ना, तो क्या मिलेगा, 7 का हो जाता है 7 4 जा 28 28, और इधर हो गया 6 63, तो ये कितना हो गया 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो ये 7 का एक कंप्लीट आपको डाटा मिल रहा है यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 4 3 का। तो क्या आया हमारे पास 7 7 7, तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 3 4 3 7 का परफेक्ट क्यूब है। तो इसी तरह से हम लोग ना बच्चों डिफरेंट नंबर्स का ना परफेक्ट क्यूब फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। यहाँ पे देखिए ये हमारा 12 का है, ठीक है, 12 इंटू 12 इंटू 12, दैट इज़ द क्यूब ऑफ 12। अब बोलोगे सर आपको याद था, आपने बता दिया। तो बच्चों मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ टाइप 2 के बाद, आपको भी परफेक्ट क्यूब मिनिमम 20 तक याद करने होंगे, ठीक है। ये अगर याद रहता है तो आपको एग्जामिनेशंस में आपका टाइम कंजप्शन कम होता है, आपका एक्यूरेसी आता है कि आपने पता है कि क्या फाइंड करना है, पहले से पता है कि आंसर्स क्या आना है, तो आप उस डेटा को ना बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चल सकते हो। नहीं पता रहने से प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द टाइप 3। टाइप 3 में बच्चों क्या सीखेंगे हम लोग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेकिंग अ गिवन नंबर अ परफेक्ट क्यूब। कोई भी नेचुरल नंबर अगर सपोज आपको दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल यू हैव जस्ट गॉट 242, ठीक है, इस तरह से कोई भी एक नेचुरल नंबर उठा लेते हैं, वो मुझे अगर गिवन है और ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, जैसे मैंने कैलकुलेट किया अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एंड मैंने फाइंड किया कि ये अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उसे परफेक्ट क्यूब कैसे बनाया जाए। आपके एक्सरसाइज में बच्चों कुछ स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इस तरीके से पूछे गए हो या तो फिर डायरेक्टली बनाने बोला गया हो कि इसे एक परफेक्ट क्यूब बनाइए, ठीक है। सो हाउ वी कैन जस्ट मेक अ परफेक्ट क्यूब, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट its prime factorization with the help of prime factorization. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 21. 121 is the perfect square of 11, so we will multiply it with 11. Okay, 11 1s are 11. Now see, for finding the perfect cube what we need, एक परफेक्ट क्यूब फाइंड करने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, सबसे पहले वो तो जानना है। तो क्या रिक्वायरमेंट होता है, कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके जो फैक्टर्स आए हैं वो फैक्टर्स ना 3 टाइम्स होने चाहिए, ठीक है। कितने टाइम्स होने चाहिए परफेक्ट क्यूब के लिए, 3 टाइम्स होने चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे 2 1 टाइम्स है और 11 2 टाइम्स है, तो हम लोग इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 3 टाइम्स हो जाएगा, 11 3 टाइम्स हो जाएगा। सो वी विल मल्टीप्लाई 2 more 2s, अगर 2 और 2 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 बन गया, एक और 11 मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हो जाता है। सो व्हाट वी विल मल्टीप्लाई टू 242 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, वी विल मल्टीप्लाई 2 2s are 4, 4 11s are 44. Okay, so what we will multiply, that smallest number is 44, that should be multiplied to 242 to make it a perfect cube.
तो इस तरह से बच्चों आप जो है फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये 3 का पेयर बन गया और ये भी जो है 3 का पेयर बन गया। इस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि एक कोई भी इंटीजर अगर गिवन है तो उसे परफेक्ट क्यूब कैसे बनाया जाए। ओके, so before starting the first exercise of this chapter, that is exercise 4.1, we do have the last type, and this type is coming in the long question type answers. Okay, so what does it says? Problem based on cubes of numbers satisfying given conditions. ठीक है, हमें ऐसे प्रॉब्लम्स इसमें मिलेंगे जो क्यूब नंबर्स का सेटिस्फाई करेगा कुछ गिवन कंडीशंस होने के बावजूद, ठीक है। सो we can see the one example on this, that write down the squares of 5 positive integers. हमें 5 positive integers का squares लिखने हैं, and which are multiples of 3, जो कि multiples किसके होने चाहिए, 3 के होने चाहिए। और उसको लिखने के बाद हमें एग्जामिन करना है ये कंडीशन, और यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों, cubes of those 5 positive integers which are multiples of 3 आर मल्टीपल्स ऑफ 27। हमें एग्जामिन क्या करना है कि अगर वो मल्टीपल होता है 3 का तो वो मल्टीपल होगा 27 का भी, ठीक है। सो लेट अस सी ऑन बोर्ड। ओके, so you have seen that we have just find out the square of 5 multiples of 3 and the cubes of 5 multiples of 3। अब अगर हम इसे 27 से डिवाइड करते हैं तो हमें फाइनली मिलता है square of 5 multiples of 3। you can see clearly, hence we can just find out the multiples of 3 are the multiples of 27 also, क्योंकि multiples जो 3 का होगा 27 का भी वही multiples होगा अगर हम उसे स्क्वायर और क्यूब के टर्म्स में समझते हैं तो। सो बच्चों, आज का ये जो 4 टाइप्स क्लियर हो गया है एक्सरसाइज 4.1 को करने के लिए। ओके, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व, दैट इज द वर्कशीट गिवन बाय मी टू यू। ओके, बट व्हाट you need to do, if you will face any kind of problem regarding this chapter, you can just comment, you can just ask me through my WhatsApp number also. Thank you, thanks a lot.